director Madhur Bhandarkar. In page 3 and corporate again, Shamit Tandon and Sandeep Nag, the music director and the lyrics writer. This movie corporate was a subject which, when I narrated the idea to Shailendra, I just told him, let's make on the movie on the corporate world. In the film, I would say power, because I'm playing the role of an actor. So an actor is something that has power with his or her star value over the audiences. They can inspire audiences with their kind of thinking and their characters that play. So you could put me into the power category. I think acting is reacting dear. तो अब जितने आपके co-actors अच्छे होते हैं, आपसे ज़्यादा senior होते हैं, उतना आप उनसे सीख सकते हो. Like in 36 Chinatown, मेरे co-actors थे परेश जी, अक्षय, शाहिद, करीना. I just had to learn from them because कितनी बार मैं director कुछ बोलते थे, but I had to improvise on the scenes. So I would just pick up from my co-actors and pick it up fast because we have to not waste the time and energy of so many people. So अगर आपके co-actors आपसे senior होते हैं and cooperative होते हैं, because जितने वो successful होते हैं उतने अगर down to earth होते हैं, तो I think it's a blessing and it has been a blessing in both my films. देखिए, ये जिस तरीके का म्यूज़िक है उसे अगर एक शब्द में कहा जाए तो ये मधुर भंडारकर की फिल्म का म्यूज़िक है, क्योंकि कॉर्पोरेट एक बहुत ही मधुर भंडारकर की छाप ये हुई एक फिल्म है जिसमें मधुर भंडारकर का एक स्टैम्प है. तो जैसे कि हमने पेज 3 में किया था, लता जी को गवाया था, आशा जी को गवाया था और कुछ डांस नंबर्स भी थे, कुछ बहुत ही सेंसिटिव गाने थे. तो इसी प्रकार का संगीत कॉर्पोरेट में भी है. देखिए, इसमें 4 गाने हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं आशा जी के साथ. कैलाश खेर ने एक पॉप कवाली गाई है सपना मुखर्जी के साथ. आशा जी ने एक बहुत ही सेंसिटिव सा गाना गाया है जो दिल को छू जाएगा लोगों के जब लोग उसे सुनेंगे, और आजकल के धड़ाम धड़ूम से काफ़ी हटकर वो गाना है. अलीशा जी ने एक टाइटल सॉन्ग गाया है एक बड़े अनोखे सिंगर के साथ जिसका नाम है गैरी लॉयर, अंग्रेज़ी नुमा सिंगर हैं ये. और एक गाना वसुंधरा दास जी ने गाया है और वसुंधरा दास पर ही ये गाना फिल्म में भी पिक्चराइज किया गया है. There are obviously a lot of expectations from the film. It's Madhur Bhandarkar's film. It's after page 3, and the film looks very good. It's an interesting novel idea where he's delving into the dark side of the corporate world. And my character is that of a young entrepreneur. He's a young guy. He's a young entrepreneur. He's a young guy who's just done his MBA, joined the firm. He's among the new entrants in the corporate ladder. Someone who's out of college joined the company, and how when there's a crisis in a company, it affects everybody, including this young boy. Plus, there's a romantic angle where Manisha Lamba is opposite me, and we are the young couple of the office. There's a little bit of a office romance brewing there. So it's quite a lot of interesting shades to the character. He is the character who would want to do the things in the right way, as against most of the people want to do things whichever way. ज़्यादातर जो हुक और क्रुक चीज़ें हासिल हो जानी चाहिए, बजाय उसके ये जो किरदार है वो इस कहानी में मानता है कि चीज़ों को सही तरीके से ही करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. तो इस किस्म का ये किरदार. भाई, एक कामयाब आदमी के साथ जुड़ने में तो अच्छा ही है, अच्छा ही लगता है कि एक डायरेक्टर जो कि नेशनल अवार्ड विनर हैं एक से ज़्यादा बार. I don't copy life. I try to get inspired by life. So I don't really get into mannerisms and all those things. I believe in my director and in the script that I'm doing, and try and believe in my abilities and try and do the best I can. So I don't think I really go into too much of research and all that stuff. I go by mostly what the text gives me and what the director's inputs are. KK is a very talented actor, but then
आसपास जब और टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर भी बड़ा टैलेंटेड होते हैं, क्या लगता है कि अपने टैलेंट कितनी बाहर निकल? देखिए, जुगलबंदी जो होती है ना, वो क्लासिकल जो सीखा हुआ है उसी में होता है। तो मेरे ख्याल से जब बहुत सारे क्लासिकल लोग साथ में होते हैं तो मेरे ख्याल से जुगलबंदी जो है अच्छी होती है, और वही हुई है शायद इस फिल्म में। मेरा किरदार है मेघा आपलेका, जो एक आम साधारण महाराष्ट्रीयन लड़की है, और इस लड़की का सपना है कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कुछ बड़ी बने। ज़्यादातर औरतें ज़्यादा आगे नहीं जा पाती हैं क्योंकि उनको फिर शादी करना होता है, दे वांट टू गेट मैरिड, दे वांट टू सेटल डाउन, हैव अ फैमिली, हैव चिल्ड्रन। वेरी फ्यू विमेन, बहुत कम औरतें हैं जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स बनती हैं, और ये लड़की जो है मेघा आपटे उन टॉप 30 या टॉप 40 विमेन एग्जीक्यूटिव्स में बनना चाहती है। और जब वो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करती हैं, उसके बड़े सपने होते हैं, उसके बड़े आशाएं होते हैं। एंड बिपाशा बासु's कैरेक्टर इज़ द वन हु टेक्स हर अप एज अ स्टूडेंट। वो उसको गाइड करती है, उसको ट्यूटर करती है। दे शेयर अ वेरी वार्म रिलेशनशिप पर्सनली, प्रोफेशनली। And in this drama, as the whole narrative unfolds, how people's relationships change, how the story unfolds in a corporate setup. I'm sure you have an inkling of what the story is about, and that's basically what the story is. देखिए, मैं हमेशा जो कास्टिंग करता हूँ कैरेक्टर के हिसाब से करता हूँ। मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर जो है वो कर पाएगा, मैं उसको लेता हूँ, वो हिसाब से मैं कास्टिंग करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं ये कैरेक्टर मैं वो एक्टर को लूँगा। मुझे लगता है मेरा कैरेक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज 3 की कुछ लाइनों में आपको स्टोरी बतानी है। स्टोरी सिंपल है, सिंपल स्टोरी है ये। एक कॉर्पोरेट जगत में अप्स एंड डाउन, रिलेशन किस तरह से खराब होते हैं, किस तरह से एक बोर्डरूम पॉलिटिक्स चलता है, और एक जो बीच में एम्प्लॉय काम करने वाले उनका क्या हाल होता है, ये वो सब्जेक्ट है। पूरे पिक्चर में तो सब एक्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहानी जिस तरह से नरेट की जाती है, ये कहानी बिपाशा और केके की है। बिपाशा और केके की कहानी है। बहुत ही अच्छा, शमीर ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और मेरी उसकी एक रिलेशन है, मेरी तीसरी पिक्चर भी वही कर रहा है सिग्नल, तो उनके साथ एक रिलेशन है। वो समझते हैं मुझे किस तरह का म्यूज़िक चाहिए, मुझे उनको पता है कि मुझे वो टिपिकल फिल्मी नहीं चाहिए, और एक बहुत ही अच्छा मूड क्रिएट करते हैं। तो एक अच्छा रिलेशन उनके साथ मेरे साथ है उनका। और म्यूज़िक वही है जो आशा जी ने बहुत ही अच्छा गाना गाया इसमें, लम्हा लम्हा ज़िंदगी जो गाना गाया उन्होंने, बैकड्रॉप में जो चलता है बिपाशा और केके के रिलेशंस के ऊपर है। तो म्यूजिक है, 3 गाने हैं पिक्चर में, तो एब्सोल्युटली वही पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे आपको लगता है गाना, आपको नहीं लगेगा कि ये गाना क्यों आया बीच में।